The session is over or what? नहीं, दामिनी ने बोला ना रिजॉइन. Where am I? Welcome back, guys. Everyone is there? So Rohit is the new person joined, right? Rohit Kathuria. Yes, sir. Okay. So give me a second. I think this thing got disconnected and I just rejoined. Give me 1 minute. I'm just. I'll just share my screen as well. I think I can't. You have to make me an organizer. Just give me a second. If organizer screen share. So yeah, I mean, how do you? I mean, the point here is what is the area where you actually are struggling or you want to discuss? I mean, the points which are a challenge area, so that we can take up one by one, because there are only limited people in this group. So that it when we are spending time, then I think it should be from the individual point of view as well. So I think I'll start with Deepak only, so that he can explain which all areas where he actually had a couple of challenges. If yes, then that's fine. Otherwise, we'll take up something of the any other person's challenges. Deepak. Deepak, are you with us? Okay, Akanshak, now is it, how is it, can you try once speaking something? Maybe audio would be working fine now. Yes, sir. Yeah, now it's fine. I can hear you, but a little lower. Your pitch is a little lower.
How Nishant actually took your sessions? Has he allocated any company to you for making a model, or how he was actually taking this session of financial modeling? Actually, he has started with a startup company, which is going to have set up one contract, which to bid for a contract which is there is in Singapore, where they have to create a toll road with overbridge as well as the toll. Okay. So that financial model he has created. Okay. So that's a actually a hypothetical case, basically, a kind of a case study, right? It's not hypothetical because they have already done it the same. With the numbers would have different, but the case was real. Okay, the case was real. Okay, so how do you see that case study? Is there anything which you would like to discuss when you worked on that? I mean, I think he would have taken it through that case study. Have you tried that on your own? Tried together with him. Okay, tried together with him. Means right from because there's a started company, no back historical data was available, so it was created from scratch through P&L to balance sheet and other statements. Okay. He has also given us all an assignment to prepare pitch book presentation for a company of our choice. Okay. Any company. Any company. And what about Rohit? Yes, sir. Yeah. So you were also part of the same exercise, right? Yes. And what about Akansha? Oh, yes, sir. I was also doing the same exercise. Okay. So so any particular thing which you look at from a challenge point of view would like to discuss, or how do we actually when we say that it's a doubt exercise, doubt clearing exercise, then I think doubt should come from your side as well, right? Actually, I am reiterating this doubt clearing session would have been arranged for 21 batch. Nobody is present in this audience, the person who belongs to 21 batch. Okay. So we are not carrying any, means from my side, I am not carrying any doubts on this. I have some doubts. Okay. Yes, Yeah, sir. tell me. Yeah, Shrikant. Hello. Yeah. I don't know how to treat deferred taxes assets in cash flow statement. In cash flow statement. Okay. So anyone would like to give his view on this particular question? See, Shrikant, what happens whenever we have tax payments, na? There are two type of tax payments which we encounter. One, we get tax liability in income statement. Another one we get in cash statement.
Okay, so what happens? Let's assume that we have 5,000 rupees of tax liability arising in this. But in cash, as we realized, we actually paid only 4,000 rupees. So then what we calculate as cash portion of tax as a percentage. So this is something which we actually calculate. This is for, let's assume this is for 2021, then 2022. We might have tax of 7,500. But what we assume here is we actually assume that 80% of that tax is going to be cash paid, and rest we are going to take it to the deferred tax asset or liabilities. If my balance sheet deferred tax asset, I'm accruing this thing. I'm paying this. I'm supposed to pay 5,000, but paying only 4,000 means a liability is getting created every year. So what will happen if we have 10,000 rupees of liability in my books? Then I'll be just adding that for so this is the way we actually treat our deferred tax liability, because we cannot go into detail of difference of calculation from tax and company point of view. So this is what we are actually saying, that whenever company is having cash basis is something which is demanded by the income tax department, and whenever we have whatever we are calculating as an in the income statement is based on my what do you call based on my company law, and cash basis is something which we are submitting tax based on income tax department. That is what, and difference of that results into the deferred tax liability, and that liability we just adjust that into the because this is the cash with less cash which we are paying, to adjust that in my deferred tax liabilities. The deferred tax liabilities are getting adjusted for the additional deferred tax liability getting created. Getting fine, and Shrikant? Sure. So that is the way of treating. So actually the deferred tax assets, but because deferred tax assets is something which is beyond our control, so for the forward years what we always assume is that we basically don't assume anything, and most of the time we say that whatever we are accruing we are paying in my cash equal amount in that current year, and we don't have any assumption related to deferred tax asset or liability generation. Whatever is there in my balance sheet at the ending period, I'm just carrying that amount. Or if at one particular point, whenever we or other way around could be, we might set off this amount against the current taxes. Like if we have a loss of, if we are generating an income after 10,000 is getting generated for 2021 and 2022, is like approximately 1.1. So what we can do is we would like to amortize this
in next 8 years. If tax liability is 20% here, then we can use deferred tax liability apportionment here, and which can be part of my, because it is a deferred tax liability, I can use this amount. So this is my net income, and that will increase my effective tax rate. Okay, so that is what we can do. Sorry. Okay, sir. So basically what we are doing, we are actually using cash and income statement tax amount difference as a creation of deferred tax assets or liabilities. If in most of the cases our assumption is that we don't actually create deferred tax or liability, because we assume whatever is accruing during the period is being paid and other aspect which is there is whatever we have created as a liability, we can keep that as a constant amount, or we can retire some portion of liability by adding that into the current year's tax. So that is what ideally we treat it when we actually work on that. So anyone else has something which like this? Don't focus on the financial statements. If you have anything which you want to discuss during the whole course, I can take हेलो it up. या रहमान साहब, सर, मुझे फिक्स्ड एसेट का फोरकास्टिंग थोड़ा सा समझना है। फिक्स एसेट का फोरकास्टिंग आपको समझना है, ठीक है? तो फिक्स एसेट का फोरकास्टिंग, एनीवन वुड लाइक टू गिव अ ट्राई? दीपक, पारुल, आकांक्षा, मनमीत? ओके, रहमान साहब, हम क्या करते हैं, मैं एक हेलो या सर, किसी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू या फिर कोई भी एक ऐसा प्रैक्टिस के स्टेज हो उसके थ्रू बता दो। ओके, प्रैक्टिस से जो फिक्स्ड एसेट का फोरकास्टिंग किया जाता है, जिसमें मेंटेनेंस कैपेक्स प्लस और ये ग्रोथ कैपेक्स का भी इंक्लूडिंग है। देखो वो तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में क्या इंफॉर्मेशन है, पर मैं कोशिश करता हूं कि have What something. I was asking means, can we do that without Sorry? having the insight of the company? सॉरी नहीं, दीपक क्या बोल रहे हो आप? Can we do that without the insight of the company? That what in which area company wants to have that capex investment and all that? Okay, that maintenance capex is okay. They are running with some machines and they do want some investment on that and they want to capitalize it. But for the capital expenditures, apart from this maintenance capex, what they are going, can we do that without having the insight of the company? What they are going to do? Yes, quite. I mean, Theoretically can be done. Theoretically anything can be done. no, it's not about theoretically it can be done, but I mean, if you just look at any of the transcripts, have you ever got a chance to read a transcript of a company? No. So when see, I'll just Is it publicly available data? yeah.
What is transcript? सॉरी, ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली जब भी कोई एनुअल रिपोर्ट आती है, नहीं, जब भी कोई कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसके साथ साथ ही वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री, कॉन्फ्रेंस कॉल रखते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस कॉल वो एक्चुअली बल होती है उसको ऑफ, जैसे आप करते हैं ना, जैसे हम ये जो सेशन हम कर रहे हैं, अगर इस सेशन को कंटेंट रिटन फॉर्म में मिले तो वो एक ट्रांसक्रिप्ट होगी आज की कॉल की, आज की क्लास की। तो वैसे ही, MOMs सॉरी, sort of MOMs or in the detailed format? in a detailed format, उसमें I mean address of all the people who are present in that meeting, जिनका even hello, किस बंदे ने क्या पूछा, वो बहुत sequentially ट्रांसक्रिप्ट होती है। मेरे पास इस टाइम तो ट्रांसक्रिप्ट शायद देखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ नहीं रखी हुई, पर अगर ट्रांसक्रिप्ट की बात करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कंपनी आपकी वेबसाइट्स में रहती है ना? कंपनी की वेबसाइट में हर कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, पर हाँ, अगर मैं, जैसे मुझे जिस कंपनी का मैं ध्यान दूं, मान लो, मुझे जहां तक याद है वोडाफोन आइडिया की कंपनी की उसमें हो सकती है शायद। एक मिनट, ये जो है ये ट्रांसक्रिप्ट है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी। ये दिस इज द सैंपल ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट वेयर, जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट होगी तो इसमें जैसे दे हैव स्टार्टेड, डियर फ्रेंड्स, द कंपनी अकाउंट फॉर March 20 सर्कुलेटेड टू यू विद योर परमिशन। ये बंदे ने बोला होगा, आई वुड लाइक टू टेक देम एज रेड, रिलायंस has had yet another year of record performance, Reliance। ये सब चीजें वो पहले एक्चुअली एक्सप्लेन करेगा, डियर शेयर होल्डर्स, ये किसी और आदमी ने, जैसे देन इवन आर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, रिलायंस सेमिनियल contribution to Indian economy remains unmatched। This is something what Mukesh Ambani would have, and then this is the format. Let me welcome Google to be our strategic partner in Geo platform. Today we have signed a binding partnership with an investment agreement with Google। So this is actually the transcript of what happened in that conference call। जो बातें जैसे जैसे हुई हैं उसमें, अब जैसे लेट मी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट हाइपर ग्रोथ इंजन जियो, आवर डिजिटल सर्विस इनिशिएटिव। ये सारी बातें बात करने के बाद में दे विल गो टू द Q&A। ये एक्सप्लेनेशन होती है, ये सब एक्चुअली कॉन्फ्रेंस कॉल में ये लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस की होती हैं और वो सब रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती है। और बाकी ये इसी से आपको पता चलता है कि वो कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। Is it available for all companies? मोस्टली इट इज अवेलेबल। अगर ये कई बार पेड सर्विसेज में भी होती है। अब जैसे रिलायंस वेल नोन है तो उन्होंने अपनी वाली ट्रांसक्रिप्ट डालकर यहाँ पे डाल दिए।
अब अगर और भी किसी की मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि That's what I was asking. It's not a publicly available data for all companies. it's a publicly available data, but होता क्या है कि सारी कंपनियां मेहनत नहीं करती हैं। जैसे इसके केस में भी मुझे लग रहा है कि शायद कॉन्फ्रेंस कॉल जो है ये रही, वोडाफोन आइडिया भी देता है, ये रही वोडाफोन आइडिया की कॉन्फ्रेंस कॉल 7 अगस्त 2020 की। मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनी कवर्ड कंपनी है उनकी आपको जरूर मिलेगी, सारी कंपनियां इतनी मेहनत नहीं करती, जिस वजह से जैसे ये देखो मॉडरेटर, थैंक यू, वी टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन ऑफ अश्विन अग्रवाल फ्रॉम न्यूबेरी एडवाइजर्स, प्लीज गो अहेड। माय फर्स्ट क्वेश्चन, at what ARPU levels do you think that business will be profitable and self sustaining? So ये actually क्या होता है कि आप जब Is a statutory requirement to file, is a statutory requirement to present in front of ROC. नहीं, I don't think it is a statutory requirement. I'm not sure, that's why I'm saying, but because अगर मैंडेटरी होता तो सभी कर रहे होते, सबकी वेबसाइट पे आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगी। ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको अच्छे एनालिस्ट कवर करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मान लो आप बिजी हैं, आप उस कॉल को पार्ट नहीं बन पाए, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से आपको काफी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। Yeah, their future investment thoughts and all that. Yes, that is what. So ऐसा नहीं चीजों के बारे में पता नहीं चलता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में इन्होंने काफी हद तक जैसे बातें की होती हैं, which gives you an idea. We will however prioritize our capital investment in our priority 16 circles, which is where 94% of revenue comes and 87% of the industry revenue comes from, which is why they are important. So ये हमें, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 16 सर्कल्स में जो इनको फोकस एरिया है, 22 सर्कल में इनके पास वो है, तो इस तरह से इनका जो कैपिटल फोकस कहाँ पे है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब जहां तक रही हमारे रहमान साहब की बात, रहमान साहब, यस सर। केपेक्स को फोरकास्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम केपेक्स को फोरकास्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ले लेते हैं कि एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, हम ये इसमें अंडरलाइंग एजम्पशन ये मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस जो ग्रो होता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है, और हर साल हम अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो कुछ पोर्शन हम जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका कुछ पोर्शन हम अपने बिजनेस में डाल देते हैं। तो अगर मेरा रेवेन्यू जो है, अगर वो सपोज इस तरह से है कि मैंने कुछ भी रेवेन्यू मेरा हर साल इतना ग्रो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हर साल के लिए रेवेन्यू का परसेंटेज अपने बिजनेस में डालता रहूंगा। तो वो मेरा पार्ट हो गया एडिशन टू माय केपेक्स। अब मेरे को हर बार कुछ बिजनेस में डेप्रिसिएशन भी होता रहता है, तो अगर मैं चाहूं तो डेप्रिसिएशन को भी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स ले सकता हूं, अगर टू फॉर द कंसिस्टेंसी। तो मैंने जैसे इसमें तो ये मेरा नेट एसेट्स हो गया। तो इस तरह से मैं अपने हर साल की शेड्यूल बनाकर अपने फिक्स्ड एसेट्स को फोरकास्ट कर सकता हूं। ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स का नेट, ठीक है, तो ये मेरी नेट एसेट्स वैल्यू है। अब इसको फोरकास्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से 2.5% ऑफ माय रेवेन्यू जो है वो मैं जनरेट करता हूं, आई एम पुटिंग इट दैट इनटू माय बिजनेस। अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि दिस इज माय ओपनिंग नेट बैलेंस। ठीक है, तो ये मेरा ओपनिंग नेट बैलेंस है। तो मैं चाहूं तो ये भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि केपेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ माय दिस थिंग कर लो। तो फिर मैं हर साल इस नंबर को एज्यूम करूंगा, तो इन स्पाइट ऑफ एज अ
परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ब्लॉक और नेट ग्रॉस ब्लॉक। ये ग्रॉस ब्लॉक जो है अभी के लिए फिलहाल मैं नेट वैल्यू को यूज कर रहा हूं कि मेरा हर साल 5-1% मैं अपने बिजनेस में डाल रहा हूं, और विच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माय दिस थिंग। ठीक है जी। और मैंने केपेक्स को जो मैंने 1% ऑफ सेल्स लिया हुआ था, मैं उसको हेलो हेलो सर, या इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कोई किसी भी एनुअल रिपोर्ट का जो होगा ना फिक्स्ड एसेट, उसका जो रहता है उसके थ्रू ये बता दो, उसके थ्रू ये एक्सेल से है। उसके थ्रू भी तो मुझे सिर्फ ये 2 नंबर ही तो मिलेंगे ना मेरे भाई। मुझे नेट वैल्यू मिलेगी और ये दोनों तो मुझे फोरकास्ट ही करने हैं, तो फिर मुझे ये दोनों तो अपने आप ही आगे के लिए फोरकास्ट करने पड़ेंगे ना। वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। अगर आप फिर भी डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी उसमें रहता ही है ना सर एनुअल रिपोर्ट में, तो डिप्रिसिएशन का तो फोरकास्टिंग होगा नहीं। सॉरी, डिप्रिसिएशन का तो फोरकास्टिंग होगा बट उसका ट्रीटमेंट तो होगा नहीं अलग से। ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा भाई? तो उसका मैं ट्रीटमेंट क्यों करूंगा इसमें? ऑलरेडी एज ऑन द डिप्रिसिएशन ले लूंगा उसमें मेंटेनेंस कैपेक्स के लिए। ऐसा है, आपको अगर अपना ग्रॉस ब्लॉक या नेट एसेट वैल्यू को फोरकास्ट करना है तो उसके लिए आपको लेना तो पड़ेगा ही। अब जैसे ये मेरे पास बैलेंस शीट है मेरी भारती एयरटेल की। अब अगर मुझे शेड्यूल बनाना है फिक्स एसेट्स का, पीपीएनई का शेड्यूल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मुझको क्या चाहिए? ये लाइव है ये। अब मेरे को मान लो हिस्टोरिकली मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे मेरे को डेटा चाहिए कहाँ से कौन सा साल का है। ये मैंने सपोज यहाँ से ले लिया। ठीक है जी, ये मेरा डेटा है। और ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होगा कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग आएगा, मैं एक साल में क्या करूंगा? केपेक्स इनकर करूंगा और मैं उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। और एक मैं वैल्यू रखूंगा, क्योंकि मैं ऑडिटर नहीं हूं तो मुझको जो भी डिफरेंस आएगा वो मुझे एडजस्ट करना है कैसे न कैसे इस आइटम में। अब ये है मेरा शेड्यूल। मगर मुझे फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल बनाना है तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर को होती है ना, तो इस साल का जो डिफरेंस है ये आ गया यहाँ पे। अब ये जो होगा ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग। अब मुझे पता है मैं केपेक्स का फिगर मुझे चाहिए, तो अगले साल का जो केपेक्स का फिगर है वो फिगर मुझे कहां से मिलेगा? वो मिलेगा मुझे आपके 16-17 के फाइनेंशियल इसमें से, कैश फ्लो में से। ठीक है जी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और मैंने इसको दोनों को ले लिया, परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स को भी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया केपेक्स, क्योंकि ये मेरा वहां पे कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर होता है, यहाँ मुझे शेड्यूल के हिसाब से इसको पॉजिटिव फिगर लेना पड़ेगा। ठीक है भाई मेरे। उसके बाद मेरे को चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा कैश फ्लो में ही, और डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट में से मिलेगा, और वो फिगर मेरा होगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन फॉर 17 का ये अमाउंट। क्योंकि डेप्रिसिएशन मैं हर साल रिड्यूस करता हूं तो मुझे शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वो कर देना है। अब ये फिगर तो मेरे पास अवेलेबल है ही है,
तो मेरे पास ये फिगर अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखूंगा कि ओपनिंग प्लस माय केपेक्स प्लस माय दिस, अगर मैं फाइनल फिगर इसमें से माइनस करके निकाल दूंगा तो मेरे पास एक ये एडजस्टिंग फैक्टर है जो कि मैं टाई अप नहीं कर पा रहा हूं मेरी कैश फ्लो की केपेक्स। आइडियली तो मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस मेरा यहां से आ गया, उसके अंदर मैंने इतना केपेक्स कर दिया और केपेक्स के बाद मैंने डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट कर दिया, तो मेरा जो नंबर है इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस फिगर। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट बीच में होती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऑलरेडी एडजस्ट कर देते हैं एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो अब ये मेरा फिगर मुझे यहां से मिल गया, मैं इसी तरीके से अगर इसको फोरकास्ट कर दूं तो मेरे को 20-21 तक की, जब तक की मेरे पास फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, मेरा एडजस्टिंग फैक्टर के साथ में मेरे को केपेक्स मिल गया। अब रही बात जब मुझे केपेक्स और डेप्रिसिएशन अगर फोरकास्ट करने से पहले मुझे चेक करना है एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है भाई मेरे, यही मेरा फिगर मैंने यहां ले लिया क्योंकि मैं सब चीजें रेवेन्यू के साथ लिंक कर रहा हूं, तो दिस एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को मैंने कंसीडर किया है, तो ये मेरा बेसिकली अच्छा बहुत इतना ही आ रहा है। अगर ये 21 आ रहा है, मेरा भी तो फिगर 21 ही था शायद। तो ये जो है तो मैं ये फिगर जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये यहां तक तो आ गया, उस साल में कहीं कैपेक्स ज्यादा हो गया होगा, तो ये परसेंटेज आ रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये लोग इस साल, अब यहाँ इन्होंने डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ नहीं केपेक्स कर रहे, ये लोग सिर्फ मेंटेनेंस केपेक्स कर रहे हैं। अब मुझे अगले साल के लिए ये नंबर जो है, ये यहाँ तो 21 का नंबर आ चुका है क्या? अच्छा, वो मैंने एक्चुअली एज्यूम किया हुआ है। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, मैं इस नंबर को या तो एक्स्ट्रापोलेट करने जाऊं तो मैं एवरेज ऑफ लास्ट 4-5 years ले लूं और दिस फिगर विल बिकम माय केपेक्स। अब मैं इस नंबर को फिर से एज्यूम कर लेता हूं, तो मेरा जो अब ये नंबर जो है, ये नंबर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आया हुआ, पर मैं इसको भी एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत एवरेज का फंडा जो है यहाँ भी लगा देता हूँ, जिससे कि मेरे को ये मैंने नंबर एवरेज कर लिया क्योंकि प्लस माइनस करके आ रहा है, मैं इसको 0 एज्यूम कर सकता हूँ। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है जी, तो ये मेरा तरीका है अपने रेवेन्यू को, ग्रॉस ब्लॉक को फोरकास्ट करने का। आई नीड टू एक्स्ट्रापोलेट, ये एक तरीका हो गया। आई कैन यूज दिस एज ए परसेंटेज ऑफ माई ओपनिंग बैलेंस विच इज लाइक मैं कितना, मेरे को ये पता चलेगा कि मैं कितना बिजनेस में पैसा अपना वापस लगा रहा हूँ, और मैं डेप्रिसिएशन को एज ए परसेंटेज ऑफ केपेक्स भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स का ही वो करूं। तो हम 1-2 टाइम्स हम कर रहे हैं। देर आर सो मेनी वेज ऑफ एक्चुअली फोरकास्टिंग। अब whatever suits to the business and whatever is the most practical way of assuming should be used। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला पोर्शन होता है जो थोड़ा एक्चुअली आपको परेशान कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग, क्योंकि आइडियली तो ओपनिंग बैलेंस प्लस केपेक्स मींस एडिशंस लेस डेप्रिसिएशन, व्हिच इज बेसिकली द
एडजस्टमेंट्स शुड इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस, बट ऑडिटिंग और मॉडलिंग में थोड़ा सा फर्क हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हमें ये एडजस्टमेंट, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. सो दैट इज व्हाट एक बार ये एडजस्टमेंट प्लीज दोबारा से बता दीजिए. देखो पारुल, एक्चुअली क्या होता है कि हम ये वाला फिगर जो है नेट एसेट्स का, मैं बैलेंस शीट से डायरेक्टली उठा के आ रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि पिछले साल का जो बैलेंस था वो मेरा ओपनिंग बैलेंस था. मैंने इस साल जितना केपेक्स इनकर किया और डेप्रिशिएट किया जितने एसेट्स को, उन तीनों का सम बेसिकली मेरा क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम प्लेन अर्थमेटिक सम कर रहे हैं, पर कंपनीज की बहुत सारे हेड्स के अंडर से ये डेटा कोलेट होके आता है, तो हमारा डेटा जो कि ब्रॉड लेवल पे होता है वो और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता. तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं, जिससे कि अगली बार में तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो ही चुका है. ये वाला नंबर जब मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया, पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस तो ये यहाँ लिया है, तो वो एडजस्टेड है. तो मैं क्या करता हूं कि हर साल ये चेक कर लेता हूं कि मुझे कितनी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है. तो मैं अगले जब फोरकास्ट करने लगता हूं तो उस टाइम कहता हूं भाई मेरा नंबर जो है वो ओपनिंग प्लस एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन जो है वही नंबर है. मैं कोई एजम्पशन नहीं कर रहा हूं एडजस्टमेंट के लिए. अगर वो सिंगुलर ट्रेंड होता ना, जैसे यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर ये भी पॉजिटिव होता तो मैं शायद इसको एवरेज ले लेता कि भाई इतना मेरे को अदर वो आएगा. पर ये भी जो होगा, ये नंबर भी जो होगा ना, वो मेरा केपेक्स का ही पार्ट होगा, तो मुझे ये केपेक्स में ही मिलाना पड़ेगा. क्लियर? या मतलब फोरकास्टिंग टीम एडजस्टमेंट दिखा सकती है, बट नेसेसरीली उसको जरूरी नहीं है इम्प्लाई करे अपने आगे फोरकास्ट. हम सेफ्टी के लिए हम इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए. ठीक है रहमान साहब? यस सर. बट एनुअल रिपोर्ट, हाँ, एनुअल रिपोर्ट में जो पीपीई फिक्स्ड एसेट का जो कर रखा है, हाँ, उसका बहुत अजीब तरीके से. भाई एनुअल रिपोर्ट में से ही तो ये नंबर उठाए हैं बैलेंस शीट के. मैं नहीं, आपकी बात नहीं समझ पाया शायद. सर मैं समझने की कोशिश करूंगा सर इस एनालिसिस को, इसके बाद मैं पूछूंगा. ठीक है सर ठीक है. मैंने कुछ किया नहीं है भाई, मैंने सिर्फ कंपनी के रिपोर्टेड नंबर्स को एक टेबल में एडजस्ट किया है, और एडजस्ट करके अपना ग्रॉस ब्लॉक फोरकास्ट किया. आगे क्या होगा, ये वाला जो 944 वाला नंबर है, मैं जब भी बैलेंस शीट को फोरकास्ट करूंगा तो ये मेरा नंबर यहाँ पे. तो मेरा एसेट जो है वो फोरकास्ट हो गया. सर जैसे आपने कहा कि हेलो, हाँ जी. एक मिनट. सर ऐसा कोई भी केस स्टडी हो या फिर प्रैक्टिस सेट फिक्स्ड एसेट का, ओनली फॉर फिक्स्ड एसेट का, जिसका फोरकास्टिंग कर रखा हो, तो वो थोड़ा दिखाना, उसके थ्रू समझना चाहता हूँ. जिसकी फोरकास्टिंग कर रखी हो, जिसके शेड्यूल की, आप एक बार पहले रहमान साहब एक बार अपने आप ट्राई करो, और जब आप ट्राई करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, और जो कंफ्यूजन होगा फिर हम उसको क्लियर कर लेंगे. ओके सर. क्योंकि बहुत मुश्किल चीज नहीं है. अगर आप इसको, मैंने सिर्फ चीजों को अरेंज ही तो किया है, और मैंने थोड़ी कुछ किया है. सर जैसे नए साल में आपने कहा कि एडजस्टमेंट को हम 0 ले लेते हैं ताकि हमारी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज ना हो, तो इससे तो एक्चुअल नंबर्स और हमारे नंबर्स में बहुत ही बड़ा फर्क आ जाएगा. तो ये कोई एक
इफेक्टिव फोरकास्टिंग तो शायद नहीं होगी। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपने, ये वाली एडजस्टमेंट तो यहाँ पर भी ऑलरेडी है ही, हो ही चुकी है ना। ये जो नंबर है, ये नंबर तो आपके एडजस्टमेंट के बाद ही आ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलो आप भूल जाओ इस बात को। क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? कुछ फर्क पड़ रहा है? मैंने सिर्फ, क्योंकि लोगों को टाई अप करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने आपको वो चीज दिखा दी। तो आप बताओ इसमें क्या परेशानी है? आपका एसेट ग्रॉस ब्लॉक नीचे आ रहा है क्या? ठीक है सर। समझ रहे हो मेरी बात को? वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि कई बार क्या होता है, जब हम यहाँ पे हम जो लॉजिक लगा रहे हैं ना आगे, वो लॉजिक जो है, वो लॉजिक सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा डिफर करता है कि पिछले सालों में हम एक्चुअल में टाई अप नहीं कर पाते। ओके सर। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। बस हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऐसा करना चाहते हैं कि लॉजिकली मेरे एसेट, मैं जो भी केपेक्स करूंगा, मेरे एसेट बढ़ेंगे, एसेट बढ़ेंगे तो भाई मेरे जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके एक वैल्यू निकाल लूंगा। बस इतना ही फर्क है, और उसमें कोई वो नहीं है। कई बार क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर पाते इन सब डिफरेंसेस को, तो हम इनको एडजस्टिंग फिगर ले लेते हैं। अगर ट्रेंड सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एज्यूम भी कर सकते हैं या एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, बट उसमें इशू ये आएगा कि वो जो अमाउंट आप एज्यूम करोगे वो केपेक्स ट्रीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आपका एनी एडिशन टू योर फिक्स्ड एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज अ केपेक्स। यस सर। हाँ जी, एनीवन एल्स? आपने एसोसिएट्स के बारे में सुना है क्या? हाँ जी, हैव यू हर्ड अबाउट एसोसिएट्स? Yes, sir. Okay, how do you Yes. treat them? क्या सर? How do you treat them? I mean, accounting treatment क्या है? Sir, accounting treatment as a minority interest or the majority interest. मैं एसोसिएट्स की बात कर रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। पारुल? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बट आई थिंक उनका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाता है, द प्रॉफिट्स फ्रॉम द एसोसिएट्स। और उनकी फोरकास्टिंग भी बताई थी कि एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड उनका इनकम फोरकास्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ P&L ओनली, आई थिंक। they are part of P&L only. You're right. Anyone else would like to give a try? Okay, don't worry. See, upon this point, associates are basically your strategic investments. अब associates जो है, any investment which accounts for 20 to 50% share held by your company will be classified as associate, because it is the strategic partnership done by your company in another business, which is not your core part of operating income. But yes, the way you treat that associate will be the point of basically point of discussion here. So what happens, we follow different method of accounting the associates. So हमने क्या किया कि हमने एक मेथड है इक्विटी अकाउंटिंग मेथड ऑफ एसोसिएट्स। तो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट
इक्विटी अकाउंटिंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स जो होता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी बुक्स में उसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइन जो कि नेट प्रॉफिट में आपका शेयर, सपोज आपने किसी कंपनी में 30% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ है, तो ऑफ योर शेयर इन दैट नेट प्रॉफिट आप अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे। तो अगर आप सिर्फ नेट इनकम को अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड कर को क्या करना होता है, हमको अपना शेयर, क्योंकि हम 50% से ज्यादा अगर होल्ड नहीं करते हैं तो हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनेटली, मान लो 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट जनरेट हो रहा है पर वो सेल थी 5000 करोड़ की, तो 5000 करोड़ का 30% यानी कि 1500 करोड़ आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में ऐड करोगे एज ए रेवेन्यू, देन उनके एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन, और आप उसको लाइन बाय लाइन प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करोगे, 100% कंसोलिडेट नहीं करोगे क्योंकि आपके पास 51% से ज्यादा स्टेक नहीं है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं तो देन यू वुड बी यूजिंग प्रोपोर्शनेटली consolidation, otherwise equity accounting method allows you to just record net profit, your share of net profit of that तो कंपनी विल बी कंसीडर्ड। अब इसमें दो चीजें और आ जाती हैं। अब अगर मान लो बाई चांस आपने एसोसिएट्स को अकाउंट तो कर लिया, अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होगी, सपोज वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है, तो जितना भी आपने इनकम स्टेटमेंट में आपने 30 करोड़ को ऐड कर दिया तो वो आपकी इक्विटी साइड में जाके बैठ गई, तो उतना ही अमाउंट इक्विटी साइड की बजाय एसेट में आपको ऐड करना है, जो कि आपको क्या करेगा, आपका बैलेंस शीट टैली कर देगा। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट आपने इक्विटीज में ऐड कर लिया और आपने वही सिमिलर प्रॉफिट आपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट में भी ऐड कर दिया। अब क्या होता है कि बाई चांस ये तो प्रॉफिट का शेयर है, एक्रूवल बेसिस पे आपको उसमें से कुछ डिविडेंड मिल गया। अब अगर आपको वो कुछ डिविडेंड जो मिला है, अगर वो डिविडेंड मान लीजिए 30 करोड़ में से उन्होंने 15 करोड़ रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो आप क्या करेंगे, टोटल इक्विटी साइड में तो आप 30 करोड़ जो है आप ऐड करेंगे, क्योंकि वो टोटल आपको इनकम जनरेट हुई है, पर 15 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट्स में से माइनस कर देंगे और 15 करोड़ आप अपने कैश में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली जो 30 करोड़ आपने इक्विटीज में ऐड किए थे, उसमें जो डिविडेंड का पोर्शन होगा वो आपने कैश में रियलाइज कर लिया। तो आप जो इन्वेस्टमेंट्स की जो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट फिगर होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर बैलेंस प्लस योर accrued income during the year less dividend received by you which is part of your cash, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू डू फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। ठीक है भाई लोगों, एनी डाउट ऑन दिस? Is there any limit and to the number of having associates? सॉरी, नहीं, मुझे आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप? कोई is there any limit? नहीं, लिमिट नहीं, लिमिट नहीं है। हमने एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स को ना क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है अप टू 20%। अब अगर अप टू 20% होती है तो आप माइनॉरिटी होते हो किसी और की बुक्स में। ठीक है, क्लियर? ओके। अगर आप 20% से लेके 50% तक अगर करते हो तो आप उसको एसोसिएट ट्रीट करते हो, या फिर वो जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, पर जॉइंट वेंचर के लिए 50-50% होता है। पर अगर थर्ड कैटेगरी है 51% एंड अबव, which means you are going to consolidate the whole company into your business line by line and then just taking out remaining portion as a minority in your books। तो ये 3 जो परसेंट जो क्लासिफिकेशन हमने की हुई है कि up to 20, 20 to 50 and 50 onwards, यही इन्वेस्टमेंट स्टेक्स बाय आउट हो सकती है। इनमें से जिस भी कैटेगरी में आपकी कंपनी लाई करती है, आप उस तरीके से उसको ट्रीट करें।
Okay. Okay. Any other point you would like to discuss? Okay, so I think it's time now as well. I'll wrap it up the session here, in which even if you have any queries related to anything, we can have another session as well. Today, because there was some bit of confusion in terms of which batch is joining and who actually requested this, because doubt sessions are happening only when you guys tell that we need to have doubt session. So I was of the view that because two batches are getting merged, somebody was at that stage, because financial statement is something which we cover in the level 1. Hope you would have enjoyed my session. So mostly we would have been able to I can say that would have discussed something different. So that's from my side for today's session. All the best and stay safe. Take care, because things are really complicated outside. Better would be if we stay indoors and just let this pandemic pass. Okay, so all the best and see you soon. Okay, guys. Thanks. Yeah. Thanks a lot for your time. Thank you. Okay. Take care. Bye.